Cool. Recording started. So yeah, the point is key. Today we are going to focus on Swift UI interview questions. So basically, it's all about again basics and fundamentals. तो आई होप कि अभी तक जितने हम लोगों ने सेशंस किए हैं वी कवर्ड सो फार basic fundamentals of SwiftWay, which started with like view modifier, then state binding and observed object, environment object, list, navigation view, navigation link, and navigation using path parameter, and what h tag, v tag, and all that thing. Right. So far we have covered these topics in SwiftUI at the basic level. Some complex scenarios are still remaining. I will come to this those complex scenarios later on. But yeah, so I hope the basic understanding we have already. uh, you can thumbs up once. Those who are kind of attending previous sessions or going through recordings actively, thumbs up once. Yeah, cool. So I hope कि जो लोग जैसा होता है ना, जैसे before the batch we actually not started with SwiftUI, we are very uncomfortable with this even though it's very easy. But जैसे मैंने starting से I mentioned this thing, it's just about कि we are actually haven't spent time with SwiftUI. That's the only concern. Otherwise, if you actually started spending time and actually thoda sa mentally peaceful, if you look the things, then it's actually very easy, more cleaner, smoother code, right? As compared to UI kit. So you will feel more again comfortable. Eventually, in the coming weeks, you can feel this thing. I feel personally when I was started with Swift UI, तो मैं भी पहले like was very afraid of fear about Swift UI कि क्या चीज है, नई चीज है, something different, or I'm obviously I'm also not comfortable with software initially. When then I started things कि okay यहाँ पे तो actually चीजें easy हैं, there are actually less number line of code, are not that complex. In जैसे UI kit में एक example के लिए बताऊँ तो if you want to make like delegate approach or closer approach for just binding the values and updating your views, right? Or your label or whatever your view part, तो उसके लिए ज्यादा तामझाम है. You need to initialize those things and you need to map those things. पर यहाँ पे तो सिंपली एप्पल ने आपको एक प्रॉपर्टी वेपर दे दी और एक जगह डिफाइन कर दो एंड बस कॉन्फ़िग कर दो, दैट्स इट. तो इट्स प्रीटी इजी इफ यू सी राइट द थिंग्स. और वो बैकग्राउंड में एक्चुअली स्विफ्ट यूआई एक्चुअली taking care of all that stuff which actually in UI kit we used to write these things. यहाँ पे Apple is taking care of all these things. Apple just saying कि okay, this is the wrapper, this is the attribute, use it properly, configure it properly. We will take care of other stuff and we will update the views as soon as or as uh, the value gets changed or updated. Your view will also get updated, right? I hope you relating this point. You can thumbs up once. In the state management context, I'm saying, which is state binding, observed object, environment object, and state object. Thumbs up. Yeah, right. You able to relate this point? Cool. So again, I will actually, but yeah, before that, I will take 5-10 minutes for today. Actually, I posted on group what's the major challenges, and I see people are struggling with getting interview calls. Right. Let me just open the group. So we actually got around 40-45 votes so far. Even though people are so many in the group, but yeah, and some people also have multiple votes. But the thing is, yeah, overall people voted like for they are not getting interview calls. I quickly address these points how we can work on this, and also people are struggling to clear interview rounds, which we actually right now practicing these topics, and we are actually preparing for this, right? We are working on this and need help with any specific topic. So I'm going to again circulate one form or some one link where you can actually mention which topics actually you're struggling or you want to work on, or what you feel कि, okay, we are not that confident in these topics, we really want to work on these topics. तो वो मैं आपको circulate करूंगा. Then please fill up that thing so that I got an idea कि okay, which are the major pain points of the overall batch group audience, right? So yeah, and then we have this point, not getting referrals or callbacks. So let's start with the first point, कि not getting interview calls. तो again I think ये चीज मैंने पहले भी पिछले initial sessions में I covered this thing. तो just quickly बताना मुझे, let me run one poll. So
if you're applying for interview, matlab, right now actively appearing for searching for a job, right? So how you're applying for a job, basically, how you are applying this subnet for a job. So I'm seeing LinkedIn, Naukri. ठीक है. So I've given four options. Let me launch this portal. So, sorry, this poll. Please इस पे एक बार vote करना, everyone. So you can now see it's live. So I'm asking you ki how you're applying for a job basically right now. Are you directly going just LinkedIn Naukri and apply button you're clicking? That's it. Or you're doing some cold emails to HR email IDs. You're reaching out the HRs of the company or recruiters. Third is approach is purely referral approach either through LinkedIn or your personal network or your tech network, whatever community network. Or fourth is something else, not in all these three above options. Fourth option something else. So yeah, please everyone, please quick poll. हो सकता है कि some people are not actively looking, but assume it कि if you are looking in future, how you will go with which approach you are actually planning to apply or which is the best approach to go for it, so that you can vote. Yes, Ankita, So you want to basically, say? what I do, I search for some of the companies and check about their career portal and go through that career portal if they have any openings, and I Mhm. can check about the some uh, common connection. So if I have Yep. that common connection, I reach out to that person and I talk to about them, the company and Reach out culture. to what means? Reach out to HR recruiter, right? Yeah, I'll connect with the HR recruiter as well as some technical guy as well, who is like mentioned in that list as well. So I reach out to those people as well as some of the like remote jobs and all those website as well there. So through them I apply for US company, but US company whenever I apply they just send me a mail, not even call me for interview. They just in me your time zone is not correct with our thing. Mhm. Yes, And yes. so basically, I think so they will think like they had to pay more money. In Uh, some countries, see, it is actually a genuine thing, and sometimes people think, okay, how you would manage because you are in right on New Zealand, right? So New Zealand and US time zone, I think major differences. yeah, So that could be the reason. But the thing is, first come to this point ki don't matlab, I would not recommend to reach out to directly HR or recruiters because they have like a generic profile, or they actually point is ki they basically receive so many mail, so I many want to say links. something special here. So in New Zealand is very small. So here, what happened? You go for some meetup. They have migrant and tech meetup. They have IT meetup. So I go there and I meet some of the recruiter and consultant, and I know them personally. Who Oh, is those people, yeah, then it's fine. Then it's fine in uh that context. so then I But reach अब out ये to है them. कि जैसे लोग जानते नहीं एक दूसरे को, सिंपली लिंक्डइन पे No, पिंग no. कर दिया, मेल That's कर what दिया. I don't do because that feel like people feel like a stalking. Okay, you are stalking me, so I like I don't want to do that. So yeah, and other than I LinkedIn through I check some vacancies and I go to their portal only and check out about the all the detail and all those things and then apply through that. Yeah, that's all. Cool. Thank you. Thanks. Yeah. So ठीक है, मैं इस पे एक बार एड्रेस करता हूँ. तो टोटल still we get only 9 votes. Why 50% audience are not voting? Please, you can see the poll or who joined later on. You can simply post it in the chat कि how you're applying for a job right now, because the major concern is कि people are not getting interview calls at all, kind of. So that's the major concern. आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर इंटरव्यू के कॉल्स ही नहीं मिलेंगे तो भाई फिर इंटरव्यू क्लियर कैसे होंगे, जॉब कैसे लगेगी, राइट? दैट्स द मेजर थिंग. First you at least get a call so that you can show your skills, so that you can, you can prepare well and you can crack the interview rounds, and finally you get the job, right? So please vote. I am about to end this poll. So mostly people are saying LinkedIn Naukri apply button.
and that's the, I think, major issue, because this doesn't works nowadays. And some people said referral approach, so that is good. That's the best approach, I would say. Cool, let me end this poll. So thanks for your vote. सो द फर्स्ट थिंग, जो लोग जो भी अभी भी ऐसा कर रहे हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो लोग आगे भी रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब पे फ्रॉम आवर ग्रुप, सो बेसिकली डोंट अप्लाई, मतलब डोंट क्लिक ऑन अप्लाई बटन एट ऑल, मतलब सिंपली डोंट यूज दिस अप्लाई बटन. Seriously, in my case, I can share my experience in last 5 to 6 years of my career. Total 9 years of experience I have, but in last 5 to 6 years, I haven't kind of used this apply button intentionally. I hardly use this button. Why? Because I know this approach actually doesn't work. Why? I can quickly explain you. Because normally when you apply using this button, so wherever the portal is, doesn't matter, like either LinkedIn or Naukri or whichever the portal is, basically in within a day or within few hours, you get so many applications, like the main recruiter person or the HR, right? Maybe like in the range of 500,000 or more than 1,000 or 2,000 or 3,000, depends. But yeah, that you know, right? That you also know. But out of 1,000 applications, how you filter and how you sort and how you ranking those applications, there's no algorithm as such, and there's no, again, logic behind that. It's just like you can filter some resume based on ATS. ATS nothing but just a keyword stuff. So that is somewhat almost similar keywords are there in our resumes, right? In our CV. So the point is, apart from that, there are some filter immediate joiner, there are some filter of your expected CTC, there are some filter for your your availability, your current number of year experience, something like that. But again, apart from all these filter, still the point is at the end you again have 500,000 applications shortlisted from these job portal, and then how you will rank it. So basically then eventually at the end, this HR or recruiter person have 500,000 application, and obviously opening ek ya do nikalti. There are only one or two openings. Now they get around 1,000 applications. How they will, right? How they will actually proceed for the interviews. So they actually call again kind of first come first serve or whatever they have sorting order. But the point is कि in these scenarios हम लोगों का कई बार profile actually open ही नहीं होता है. In most of the cases your profile is not going to be open at all, and we are simply thinking yes, something is there, our resume may be not that good, our maybe profile is not that relevant, but that is not the case. We are thinking in a wrong perspective or manner. So yeah, this approach is really bad, doesn't work. It's really, in the worst case it works. So I would highly recommend you, if you're not getting referral at all, after trying so many things, then you go with this apply button approach, but normally avoid it as much as possible. I hope you're getting my point. And then how you can get a referral, I come to that part. But you can thumbs up once if you're relating this point. So please stop using apply button. Seriously, this wouldn't work at all. Okay, hardly out of 100 apply button, you get a 1 or 2 call, which is again based on your luck. So don't play or don't rely on your luck so much. Okay. Okay, you can believe in your luck, that is fine. I wish you the best of luck, but the point is key, this doesn't work, this approach is not recommended. So that is my point. I hope you're getting my point. So the second thing is what is the best approach, because this is the worst approach. This actually works 5-10 years back, right? At that time there's not that much competition, limited profiles. Okay, then it actually works, these things, Naukri and LinkedIn apply button. Now actually from last 3-4 years or after COVID, these things doesn't working right now properly. So that approach is the referral approach. And for referral approach, again I can give you quickly one scenario. अब ना बोलोगे कि how कुशल referral कैसे लें, again I would not recommend you to go HR cold email, because that HR or recruiter actually gets so many mails. So somewhat again he or she maybe missed your mail. ठीक है? So again the point is कि again आप ही assume करो, whenever you think about any scenario, think कि okay, if you are in that place of in the place of that person, how would you do, like, right? So suppose आप ही वो HR recruiter हो, you are getting 1,000 of mails or 500 application or mails, then again obviously आप किसको reach out करोगे, कैसे करोगे, right? So obviously आप कई profiles open ही नहीं करने वाले हो, right? कुछ limited ही करोगे और उसमें से जो पसंद आ जाएगा, you actually call that person and you schedule an interview. So the point is, against the HR cold email approach, again it's better than apply button, but obviously not the best approach. It's second worst approach I can say. So referral के लिए
highly recommend कि you again take an example in Google right now. Opening is there, right? Senior software engineer in iOS in Bangalore. I'm just giving one scenario, or in Uber or Intuit, all these good product-based companies right now hiring, right? In India, I'm saying. So the point is, if you want a referral for like suppose example for Uber, for Google, or even Microsoft, or any good product-based company or startup, or even Zomato, Swiggy, ठीक? So you go on LinkedIn, right? You will connect to the people, right, who are actually working in the iOS domain or maybe Android or backend. That also fine, but recommended, highly recommended, you connect with the iOS people or iOS tech lead or iOS manager, engineering manager, something like that, right? So, but the thing is, whoever or to whomever you're connecting that person, ठीक है, उसको obviously हम जैसे और भी लोग reach out कर रहे हैं, ping कर रहे हैं, because this approach, people know this thing, right? It's not a secret thing. It's a very common stuff. It's a very basic common sense, right? So the point is, Zomato का मैं example ले रहा हूँ या Google का, जिसको आप reach out कर रहे हो उसी को हम जैसे और भी 100,000 या maybe 50, 100, 200 people और reach out कर रहे हैं LinkedIn पे, right? You can, आप ये तो समझ सकते हो, राइट? यू, आई होप यू आर रिलेटिंग दिस पॉइंट. सो द पॉइंट इज कि अगेन अब उस बंदे के पास 50-100 डीएम्स आ रहे हैं. अब वो 100 में से ऑब्वियसली यू कांट रैंडमली 100 पीपल को आप रेफर तो नहीं कर सकते, और इतना करना भी नहीं होता, इतना करते भी नहीं है लोग. सो नाउ यू ऑब्वियसली हार्डली 2-3 प्रोफाइल, 1 प्रोफाइल, 5 प्रोफाइल, मैक्स 2-3-5 प्रोफाइल्स आई एम गोइंग टू रेफर, राइट, इन आवर कंपनी नॉर्मली. So it doesn't matter कि I'm getting this profile through LinkedIn or my mail or whichever, or WhatsApp group or any other communication, right? But the point is कि अब मतलब जितना आपका resume and LinkedIn profile जितना active sound करेगा, that actually is the main game, I can say. वहां पे चीजें डिसाइड होगी कि किसको रेफर करना है और किसको नहीं करना, बट दैट गाय एक्चुअली आपके मुंह पे वो नहीं बोलेगा ऐसा कि भैया आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है तो आई कांट रेफर यू, मैं किसी और को रेफर कर रहा हूँ पर आपको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास भी लिमिटेशन है, वो अपनी जगह सही है, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको नहीं जानते पर्सनली. सेकेंड थिंग, पर्सनली जान के भी एक होता है कि जैसे मेरे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और मुझे पता है कि उनका टेक्निकल वीक है या वो इतने एक्टिव नहीं है और मुझे पता है वो इंटरव्यू भी नहीं निकाल पाएंगे, तो ऑब्वियसली मैं किसी और पर्सन को रेफर करूंगा, राइट? तो वो तो चलो एक अलग केस हो गया, बट नॉर्मली हम लोग उनको पर्सनली नहीं जानते. तो जब आप पर्सनली को जानते ही नहीं हो तो ऑब्वियसली वो किस बेसिस पे आपको जज करेंगे, राइट? तो रिज्यूमे तो ऑलमोस्ट सबके सिमिलर होते हैं आजकल, मतलब उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता. तो बेस्ड ऑन द पॉइंट इज लिंक्डइन प्रोफाइल इज द मेन गेम, जहां पे आप ज्यादा एक्टिव दिख सकते हो, ज्यादा पैशनेट साउंड कर सकते हो ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑन योर गेटअप प्रोफाइल. तो दैट इज द मेन थिंग. वहां से यू कैन शोकेस की रियली आई एम पैशनेट, रियली आई एम आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज, and I'm very much like interested in this company. Even I know what kind of round it are there in your company. So that kind of confidence you can give to the person who are actually you're reaching out. You're getting my point? That actually decide कि okay, वो person भी सोचेगा कि okay 50 में से मुझे ये थोड़ा सा stand out sound कर रहा है या थोड़ा सा outstanding या above average sound कर रहा है, तो मैं जाऊंगा, ये ज्यादा appealing लग रहा है, इस प्रोफाइल को वो रेफर करेगा और बाकी लोगों को नहीं करेगा. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट. तो इस चीज पे काम करना शुरू करो. दैट आई जस्ट, तो मेरे केस में जैसे मैंने बोला अप्लाई बटन में नहीं दबाता हूँ, बट बिकॉज ऑफ माय लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ा मतलब अच्छा है या थोड़ा सा अपीलिंग है, दैट्स वाई जब मैं किसी को अप्लाई करता हूँ मुझे रेफरल नॉर्मली मिल जाते हैं. मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे मिल जाता है रेफरल जस्ट बिकॉज ऑफ माय लिंक्डइन प्रोफाइल. ठीक है, रिज्यूमे मेरा भी नॉर्मली है जैसा आप लोगों का. रिज्यूमे में कुछ बहुत आप तोड़ू फोड़ू चीजें नहीं कर सकते हो, एक लिमिटेड ही स्कोप है वहां पे, पर लिंक्डइन पे और गेटअप पे बहुत कुछ किया जा सकता है, और उस बेसिस पे कई सारे कॉल मिलते हैं, कई सारे रिक्रूटर्स खुद से आगे से भी रीच आउट करते हैं. मेरे केस में मुझे कई अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की कॉल मिले जस्ट बिकॉज ऑफ माय लिंक्डइन. तो मैं वही आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस. सो आई होप वी कैन रैप अप दिस पॉइंट फॉर नाउ, बट यू कैन रिलेटिंग इट, मतलब एग्री कर रहे हो तो थम्स अप कर सकते हो ऑन दिस पॉइंट. तो प्लीज ट्राई कि इस तरीके से ट्राई करो चीजें. कुछ तो स्टैंड आउट करना पड़ेगा, ये बात को समझो. नॉर्मल अप्रोच वर्क नहीं करेंगी. अब चीजें बदल गई है, मार्केट ऑलरेडी ग्लोबल सिनेरियो, वो रिसेशन वगैरह भी सीन हुए हैं, लिमिटेड ओपनिंग्स हैं, लोग बहुत ज्यादा है अब. ठीक है, मार्केट में iOS डेवलपर भी बहुत घूम रहे हैं, राइट? तो भाई उन सब में आपको कहीं तो स्टैंड आउट करना पड़ेगा, तभी आपको लोग एंटरटेन करेंगे. इस बात को समझना. तो जितना पैशनेट होंगे, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, जितना आपका प्रोफाइल अपीलिंग होगी, ये सब चीजें मैटर करती है. तो मेक श्योर कि आप इन चीजों पे काम करो और इसको सीरियसली लो. सिर्फ अप्लाई बटन दबा के छोड़ दोगे, किसी को मेल डाल के छोड़ दिया और आप कह रहे हो कॉल नहीं आ रहे, भाई मार्केट डाउन है, तो ये भी सोचो कि नहीं और भी लोग की तो हायरिंग हो रही है ना, लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं कंपनीज, लिंक्डइन पे लोग डालते हैं
अपना ज्वाइनिंग पोस्ट, राइट? तो और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ओपनिंग्स कहीं ना कहीं तो निकल रही है, मार्केट चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट पूरा ही बंद हो गया, ऐसा नहीं है, राइट? तो ये आपको समझना होगा, तो ये एक्सक्यूज नहीं देना अपने को। पॉइंट ये है, आपको अपनी चीजों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? करोगे तो ऑब्वियसली चीजें बेटर होंगी, नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो या, तो हम लोग एक्चुअली अभी इस फाइनली आज हम लोग, आई विल शेयर यू द पीआरडीज ऑफ, मैं चाहूंगा कि सब लोग का गिटहब लिंक्डइन बेटर हो, तो जिसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि हम लोग एक प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो हमने 2 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए थे इसके लिए, एक है हम लोग का मैट्रोमनी ऐप है एक, और एक हम लोगों का है दिस थिंग सोसाइटी मार्केट प्लेस। सोसाइटी मार्केट प्लेस ऐप जो है, दिस इज सिमिलर टू लाइक, और नॉट अ सिमिलर आई कैन से, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ Amazon, Flipkart plus your Meesho and your Fiverr kind of. इस तरह का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। यू विल सून गेट योर UI UX डिजाइन एज वेल, पर इन द मीन टाइम हम लोग उस पर काम स्टार्ट कर देंगे। वी विल नॉट एक्चुअली वेट फॉर द UI UX डिजाइन, वी विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट एंड इवेंचुअली विल गेट द डिजाइंस एंड देन वी कैन रीवैम्प आवर UI, ठीक है? सो द पॉइंट इज इट्स एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो अभी जो भी हम सीख रहे हैं, तो उसकी भी जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड। इसलिए मैंने एक रेपो बनाया, मैंने उस पर अभी से इनिशियल कोड स्विफ्ट का एक डाला था, और दूसरा MR मैं आज एक रेस करूंगा जिसमें मेरे अभी तक जो भी टॉपिक्स के आपको सैंपल कोड जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वही वहां पे होंगे। बट द पॉइंट इज, अब जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो वो अब अपने गिटअप पे बना के डालो, तो वो आपका गिटअप पे दिखेगा, राइट? यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग, और यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, और यू आर बिल्डिंग समथिंग, ठीक है? आप कोई ऐप बना सकते हो, ठीक है, अपने मन से, जो भी आपके माइंड में है, anything you can do that, but the point is ये दिख के आना चाहिए कि इन फ्री टाइम में यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग समथिंग, यू आर लर्निंग। तो उससे दिखता है कि आप कितने पैशनेट हो, कितने सीरियस हो इस डोमेन को लेके, या अपने वर्क को लेके, या अपने iOS को लेके, राइट? या स्विफ्ट को लेके, जो भी सॉफ्टवेयर को लेके, एनीथिंग। ये जितना दिखेगा उतने आपके चांस बढ़ेंगे रेफरल कॉल्स आने के, या आपको आगे से रीच आउट करेंगे रिक्रूटर्स और HR, ठीक है? इस बात को समझना, ठीक है? तो मेक श्योर इस चीज को यूज करो। मेरा एक फ्रेंड है, उसका गिटअप काफी अच्छा है, उसको एक्चुअली कई रिक्रूटर्स गिटअप प्रोफाइल देख के रीच आउट कर देते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है? तो ये लिटरली होता है। तो आपका लिंक्डइन और गिटअप बहुत काम की चीज है, अगर जितना अच्छा रखोगे उतने ही आपके चांस बढ़ेंगे, अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के कॉल आएंगे फॉर श्योर, ठीक है? अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड सबके आएंगे, पर वही है, आपको ये शोकेस थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग टुडे एक्चुअली, मतलब आफ्टर दिस सेशन आई विल शेयर इन द मोस्टली बाय टुडे इवनिंग। तो आप एक बार PRD डॉक गो थ्रू करो तब तक, एंड देन वी विल डिस्कस कि हाउ वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक फीचर्स इनिशियली। हम 1 से 2 फीचर पे टारगेट करेंगे पहले, एंड विल मेक अ ग्रुप ऑफ दिस। तो जो लोग एक्टिव हैं अभी तक सो फार, विल मेक अ ग्रुप, वी हैव अ टीम, एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है? तो इससे इवेंचुअली हम लोग लिंक्डइन और अपना गिटअप काफी बेटर बना सकते हैं। एंड मेक श्योर आप लोग लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव हो, थोड़ा पोस्ट कर दिया करो। डिपेंड, आप किसी भी रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर कुछ तो पोस्ट करो। अब वो आपके ऊपर है, आपको किस तरह का पोस्ट करना है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि iOS रिलेटेड, अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड आप पोस्ट करो वहाँ पे, तो बेटर होगा। तो उससे भी अगेन दिखता है कि आप कितने एक्टिव हो, कितना लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल साउंड करती है कि एक्टिव साउंड करती है, वो करनी चाहिए, ठीक है? तो मेक श्योर वहाँ पे पोस्ट करो, लाइक कमेंट करो, शेयर करो, जो भी करना है, मेक श्योर कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे करो। एंड मेक श्योर यू इंक्रीज योर लिंक्डइन फॉलोवर कनेक्शंस काउंट। आपको लिंक्डइन हर हफ्ते का 50 से 100 का लिमिट देता है, तो उसको यूज करो। वीकली वो रीसेट होती है लिमिट, एवरी वीकेंड पे, मतलब संडे या मंडे को मॉर्निंग को। तो मेक श्योर उस लिमिट को आप यूज करें, आप वरना उसको वेस्ट कर रहे हो काइंड ऑफ। तो ठीक है, लिंक्डइन बहुत काम की चीज है अगर आप उसको सही से यूज करना सीखो तो, ठीक है? कूल। तो लेट्स स्टार्ट विद, आई होप एक बार थम्स अप कर सकते हैं लोग, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? तो लेट मी स्टार्ट विद, तो मैं क्विकली एक, आई हैव द प्रोजेक्ट। तो आज हम लोग एक्चुअली स्विफ्ट यूआई के, मैं अगेन उन्हीं टॉपिक्स को फिर से आई एम गोइंग टू री काइंड ऑफ विजिट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन पीपल हैव सम कंफ्यूजन, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो मैं उसी पे एक बार जाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है? तो पॉइंट इज, एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी भी डोमेन में चले जाओ तो इट्स नॉट अबाउट UI किट और स्विफ्ट UI और नॉर्मल स्विफ्ट और iOS, और जितना बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी एक होते हैं ना, एक डीप लेवल पे होगी, उतना ही आपके चांसेस बढ़ेंगे कि इंटरव्यू क्लियर होने के। तो मेक श्योर, जब अपने को पता है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कि अगर आपको स्ट्रक्ट वर्सेस क्लास का ही इतना क्लियर नहीं है चीजें, या फिर आपको UI किट का, अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं, व्यू हायरार्की हो गई, या ये कह लो आप चेनिंग इवेंट्स हो गया, ठीक है, क्लोजर्स हो गया, नॉर्मल बेसिक क्लोजर, जेनरिक्स हो गए, ठीक है, ऐप स्टेट्स हो गई, व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल,
इन चीजों की भी बेसिक एसोसिएटेड टाइप हो गया, ठीक है, प्रोटोकॉल्स का हो गया, हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, हाउ यू कैन राइट योर ओन हायर ऑर्डर फंक्शन। ये टॉपिक हमने लास्ट इंटरव्यू सेशन जो था हमारा टॉपिक्स वाला, उसमें टच भी किया था। तो द पॉइंट इज, अगर ये चीजें आपको क्लियर नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं कहीं से तो और इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ पढ़ लूँ, समझ लूँ, सीख लूँ, रट लूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ऑब्वियसली आपको खुद से थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा, उसको टाइम दो, थोड़ा डीप डाइव समझो, रट के नहीं जाना है, वो चीज वर्क नहीं करती है। और थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये चीजें वर्क करेंगी। तो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आराम से इंटरव्यू निकाल पाओगे आप। और बेसिक्स पे पहले फोकस करो। कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, एडवांस टॉपिक स्किप भी किए तो चलेगा, बट पहले बेसिक पे जाओ, फिर उन टॉपिक्स पे जाओ जो कि थोड़े टफ है, या अगेन टफ तो कुछ नहीं होता बट एक्चुअली फील आपको टफ करता है। तो ऐसे चैलेंजिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आप बाद में विजिट करो, पर पहले बेसिक टॉपिक्स पे अपना कमांड अच्छा कर लो। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड, एक्सकोड। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते 1 second just चलो ठीक है, दैट्स फाइन। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, आई हैव वन, मैंने सिंपल प्रोजेक्ट एक कोड लिया है फ्रॉम इंटरनेट ओनली टू एक्सप्लेन यू दीस थिंग बेटर। ठीक है, लेट मी नो वंस स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, अभी बहुत चीजें करनी है, वी अगेन इन वेरी एट द इनिशियल फेज। तो अभी हम लोग को बेसिक्स पे अगेन कमांड करना है, आइदर इट्स स्विफ्ट यूआई हो या नॉर्मल आईओएस हो। ठीक है, यूआई किट के भी कुछ टॉपिक्स हम लेंगे। सो द पॉइंट इज, एंड देन फिर डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न्स, कंबाइन वगैरह, ये सारा अभी चीज आने वाली है। और भी चीजें लाइक प्रोफाइलिंग टूल्स होते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट केसेस हो गया, स्विफ्ट डेटा भी लेंगे हम लोग, कोर डेटा, ये सब चीजें। तो हाँ, द पॉइंट इज कि सो मेनी थिंग्स वी नीड टू कवर, बट या द पॉइंट इज, ये बेसिक्स पार्ट पे ही आपका कमांड नहीं तो वो टॉपिक्स को टच करने का सेंस नहीं बनता है। अगेन लाइक एसएसएल पिनिंग, ये सब चीजें हो गई, राइट, ऐप सिक्योरिटी, ऑल दी स्टफ, मेमोरी मैनेजमेंट, लीक्स वगैरह, ये सारी चीजें। सो आई होप, हाँ, माई स्क्रीन इज विजिबल। सो आई एम अगेन गोइंग टू द फर्स्ट दिस थिंग, एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट का एक यहाँ पे एग्जांपल है, तो लेट मी रन द कोड फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको एक बार पहले रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी 3 स्क्रीन है, मैं आपको सिमुलेटर पे दिखाता हूँ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ तो यूजर नेम डाल रहा हूँ जो कि ABCD कुछ भी हो सकता है। जो भी मैं लिखूंगा वो ऑटो करेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अपडेट हो रही है वैल्यू। और फिर मैं सेकंड व्यू पे जाता हूँ, सेकंड व्यू पे उस यूजर नेम का कोई लेना देना नहीं है, आई एम नॉट यूजिंग दैट वैल्यू। ठीक है, यूजर नेम यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग। फिर यहाँ पे मैं कुछ बैलेंस है यहाँ पे मेरा, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। हर प्लस पे मैं 1000 ऐड कर रहा हूँ, माइनस पे मैं माइनस कर रहा हूँ, और जीरो होने के बाद और माइनस भी नहीं जाएगा वो, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस डजंट मेक सेंस, राइट। तो उसके लिए एक चेक लगा के रखा है। तो यहाँ जो भी आप बैलेंस सेट करोगे, जैसे 5000 है सेट, एंड देन नेविगेट। सो एक्चुअली ये थर्ड स्क्रीन है विच इज द फाइनल स्क्रीन, जिसमें आपका यूजर नेम भी दिखेगा जो हमने एंटर किया था, और बैलेंस भी दिखेगा। ABC दिखा रहा है अभी, तो ABC इसमें हमने एंटर किया हुआ। देखो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, सपोज दीपक, तो दीपक दिखाना चाहिए, राइट। और बैलेंस अभी मैं अगेन कुछ सेट कर देते हैं, 5000 है, इसको और कम कर दो आप, 2000 कर दो, 2000 आ जाएगा, राइट। सो द पॉइंट इज, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट जो अगेन हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई होप कुछ लोग ऑलरेडी कंटेक्स्ट है, बट अगेन हम रिविजिट कर रहे हैं कि इंटरव्यू में अगर इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट पे कुछ भी पूछ ले
तो बिंदास आंसर कर पाओगे अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो, राइट? द पॉइंट इज दैट। तो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट आपका, अभी यहाँ पे आप देखोगे दिस इज आवर एक्चुअल पेरेंट व्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको कोड वॉक थ्रू कर दूं एक बार, ये चीजें वर्क कैसे कर रही है। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमने यूज किए एज एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट, जो आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, यूजर है और एक अकाउंट है। इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ, ठीक है? तो अभी इस चीज पे ध्यान देना कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ये अपना एक पेरेंट व्यू है, पेरेंट की व्यू कह लो या फर्स्ट स्क्रीन कह लो उसको, ठीक है? फर्स्ट स्क्रीन है और उस फर्स्ट स्क्रीन में हम लोग वो यूजर नेम एंटर कर रहे हैं, राइट? एक टेक्स्ट फील्ड बनाई हुई है, वैल्यू मैप करी हुई है यूजर के साथ। यूजर को आप जब भी इनिशियलाइज करोगे तो इनिशियली उसमें कुछ नहीं, ब्लैंक है, ठीक है? ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और ऐसे ही अकाउंट भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का भी इनिशियल बैलेंस हमने 0 रखा और ये इंटीजर है, ठीक है? डबल फ्लोट भी रख सकते थे यहाँ पे, बट जानबूझ के इंटीजर रखा है अभी के लिए, मुझे डॉट डॉट वाला भी नहीं चाहिए थी। सो द पॉइंट इज कि कहाँ पे हम लोग, वापस पीछे जाता हूँ मैं। तो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे, इसको कुछ फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग दिया है, इसका मैं आपको यहाँ अगेन प्रीव्यू एक बार खोल देता हूँ, तो यहाँ देख के आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। तो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट अभी कैसा है कि मैं चाहता हूँ पेरेंट व्यू में मैंने ये इंटीग्रेट कर दिया एज ए इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट। अब मैं चाहूँ तो उसको सेकंड स्क्रीन पे भी यूज कर सकता हूँ, थर्ड स्क्रीन पे, या कल को सपोज यू हैव फोर्थ स्क्रीन, फिफ्थ स्क्रीन, जो भी हो उस पे यूज कर सकते हो, राइट? तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था, राइट, कि अगर आपको इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट तो अपने पेरेंट पे या अपने फर्स्ट पे इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद फिर आपकी पूरी चेनिंग में जितने भी चाइल्ड व्यूज है दे कैन यूज इट एक्चुअली, दैट इज द पॉइंट, ठीक है? तो अभी आप देखोगे तो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू डाल रहे हैं, पर ये वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हो रही है, इसी वैल्यू को आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो सेकंड व्यू में जाएंगे हम, सेकंड व्यू में एक्चुअली हम बैलेंस सेट कर रहे हैं, राइट? अपना स्टेपर हमने देखा, यहाँ पे हम बैलेंस के साथ खेल रहे हैं। फर्स्ट स्क्रीन में हमने यूजर नेम को चेंज किया है, बाकी बैलेंस का यहाँ पे कोई कंटेक्स्ट नहीं था, बट हमने इनिशियलाइज करके रख दिया और इंटीग्रेट कर दिया, उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है, राइट? बट सेकंड व्यू में एक्चुअली हम लोग बैलेंस को चेंज कर रहे हैं, राइट, उस वैल्यू को, और फिर एक्चुअली थर्ड स्क्रीन पे दोनों वैल्यूज को हम रीड करके या शो कर रहे हैं सिंपली। यहाँ पे एक्चुअली चेंज नहीं कर रहे, पर रीड कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट? तो पॉइंट इज कि इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट, और अगेन इससे लोग ये भी करते हैं कि ये यूजर डिफॉल्ट जैसा है, कह सकते हो, बट अगेन प्योरली यूजर डिफॉल्ट जैसा नहीं है ये। जब तक मेमोरी में आप एक्टिवली चेंज करते हो वैल्यू, उतना ही टेम्पररी स्टोर करता है, जैसे ही आप किल करोगे हट जाएगा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना, ये एक डिफरेंस है। तो टेम्पररी कंटेनर कह सकते हो उसको आप, जब तक आपकी ऐप लाइव है, और उसमें अगेन ग्लोबल वेरिएबल काइंड ऑफ फील देगा आपको ये, बट पेरेंट चाइल्ड व्यू हायरार्की में ही देगा। पूरे ओवरऑल ऐप में भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, मैंने बताया था। अगर अभी जैसे मैं यहाँ फर्स्ट व्यू में कर रहा हूँ, पर ऐप लेवल पे अगर इंटीग्रेट कर दूं और कुछ एनवायरमेंट एट्रीब्यूट्स खुद आपको ये देता है, आपको स्विफ्ट यूआई, जैसे कि थीम का वो मिल जाता है, ऐप स्टेट्स का मिल जाता है, ऐसे और भी होते हैं। अब वो हम एक्सप्लोर करेंगे तो एक सेशन में ले लेंगे, या आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो आप ओवरऑल आपका डिवाइस का करंट सेटिंग का लाइट थीम है, डार्क थीम है, आपको पता चल जाएगा। उस बेसिस पे आप अपना ऐप को अपडेट कर सकते हो, वो ओवरऑल ऐप में अवेलेबल होता है, ठीक है? वो एट्रीब्यूट, उससे आपको वैल्यू मिल जाती है। सेकंड, आपका ऐप स्टेट अभी कौन सी चल रही है वो भी आप कॉन्फ़िगर करके अपने ऐप को अपडेट कर सकते हो। अभी बैकग्राउंड में जा रहे हो या फोरग्राउंड में एक्टिव है या इनएक्टिव है स्टेट, राइट? जो हम लोग यूआई किट में भी करते थे, राइट? वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, थोड़ा सा अलग है बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है? तो इस तरह की चीजें मैं कह रहा हूँ आपको। तो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है, एनीवन, एनी कंसर्न? तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसका प्रैक्टिस कर लेना इफ यू हैवंट प्रैक्टिस येट। बहुत बेसिक टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव। तो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है, पहले तो अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं की तो पहले प्रैक्टिस करो, खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो बिंदास आप लेट मी नो, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ग्रुप पे डाल, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवर यूजिंग द इज नॉट अलाउड, इट इज यूज ओनली फॉर ग्लोबल स्टेट जस्ट लाइक द सिंगलटन। नहीं रोहित, इस नो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। मतलब ओवर यूज, हाँ देखो, डिपेंड्स। इफ जैसे होता है ना कि मुझे अभी जेन्युइनली यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, वरना इसके बजाय भी मैं कर सकता हूँ, पर मुझे चेनिंग वाइज मतलब वो डेटा भेजना पड़ेगा, तो ऐसे केस में तो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट आपका ये कह रहे हो कि ओवर यूजिंग, क्यों आप ऐसा कह रहे हो? मतलब मैं आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, व्हाई यू आर सेइंग कि ओवर यूजिंग इन्वायरमेंट इज नॉट अलाउड? मतलब कौन रोक रहा है? मतलब कंपाइलर तो नहीं रोकेगा, और मेमोरी का सीन है, या क्या इशू है, या क्या कंसर्न है जिस वजह से आप ये कह रहे हो? आप इस पर आंसर करना चाहोगे? व्हाट्स योर कंसर्न एक्चुअली फॉर ओवर यूजिंग इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट्स?
ठीक है, एक्चुअली बस तो डिपेंड करता है कि आप किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो। हाँ बताइए रोहित। एक्चुअली कंसर्न ये है कि अगर हम इसको सब यूज के अंदर यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो हम्म इसको करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना, वही आप कैसे मैनेज कर रहे हो। ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हो। अभी देखो होता ही है कि ये सारा पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की में, राइट। तो पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है मेरी ऐप में 4 फ्लो अलग अलग चल रहे हैं, 4 टैब्स बने हुए हैं। तो पर टैब की स्पेसिफिक में जो जर्नी जा रही है, उस जर्नी के स्पेसिफिक मैंने कुछ एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हुए हैं, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है सच, राइट। और उसमें अगर क्लटर हो रहा है तो जैसे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट में होता है टाइप पे सारा खेल, आप अलग अलग डेटा टाइप्स बना के यूज करो। एक ही टाइप का बनाओगे तो प्रायोरिटी वाला सीन होता है। तो प्रायोरिटी वाइज भी हमने एक बार डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो। प्रायोरिटी में जो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ही मिलती है जो पहले असाइन होता है। तो प्रायोरिटी आपको फिर मैनेज करनी पड़ेगी। अगर वो प्रॉपर मैनेज कर रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं करोगे तो चीजें फिर मैच्ड अप हो सकती है, राइट। तो ये अगेन आपके ऊपर है कि आप यूज कैसे कर रहे हो, उस पर भी ये चीज है। और जेन्युइनली आपको लगता है एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट वहाँ पे बेस्ट है तो ही यूज करो ऑब्वियसली। कोई और बेटर अप्रोच लग रही है आपको तो ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हो। पर क्यों अवॉइड करना है, किस कंटेक्स्ट में करना चाहिए, ये पहले अपने को क्लियर होना चाहिए, तभी अवॉइड करो। अननेसेसरी भी ऐसा नहीं कि भाई एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट कोई अपने को कुछ प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ बहुत ही हैवी चीज है, ऐसा तो नहीं है, राइट। लाइटर चीज ही है। अच्छा, तरुण ने एक पॉइंट बोला, री रेंडर्स ऑल स्क्रीन्स वेयर यूज वेयर एवर एनी प्रॉपर्टी चेंजेस। हाँ, ये कुछ हद तक बात सही भी है। तो हाँ, ऐसा कोई रीजन ही मैं पूछना चाह रहा था रोहित आपसे। अगर आपके पास उसका प्रॉपर वही जेन्युइन पॉइंट है, आंसर है, तो मेक सेंस कि हम उस कंटेक्स्ट में सोचें फिर कि हाँ इस केस में सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो अननेसेसरी वो पूरा रेंडरिंग हो, अपडेट हो व्यूज, और ऑब्वियसली जहां जहां वो यूज हो रहा है वहां वहां पे वो अपडेट करेगा जब भी वैल्यू चेंज होगी। तो हाँ, ये कंटेंट आपको देखना होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करते हैं फिर कोड को। पर अभी हम ऑप्टिमाइजेशन पे इतना आए नहीं, अभी तो हम पहले समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। पर ऑप्टिमाइजेशन पे भी आएंगे, किस केस में फिर हम लोग को अवॉइड करें या किस केस को और हम बेटर कर सकते हैं इन तरह की चीजों में। तो स्विफ्ट में फिर वो मैं उस एंगल पे आऊंगा, मेमोरी मैनेजमेंट या अननेसेसरी व्यू री रेंडरिंग जो होती है, जिसको हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, उस टॉपिक को हम आगे लेंगे। बट हाँ, वो एक्चुअली टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हो, जो कि तरुण ने भी पॉइंट बोला। ठीक है, सो या थैंक्स तरुण फॉर दिस पॉइंट। तो रोहित आप समझ पा रहे हो ये पॉइंट एक्चुअली, एक तो आप कैसे यूज करते हो, दूसरा आपका एक्चुअल कंसर्न क्या है, तो उसकी कंटेक्स्ट से फिर आप चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कोड को, राइट। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट, हाँ यस। क्वेश्चन का पॉइंट ये था कि जो ये इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट बनाया है ना एप्पल ने, ये ग्लोबल स्टेट के लिए बनाया है ना कि लोकल स्टेट्स के लिए। क्योंकि अगर आप काइंड ऑफ कह सकते हो ग्लोबल जैसे के आप लिए। टेक्स्ट फील्ड को यूज करें तो आप वो लोकल स्टेट्स के लिए यूज करो उसको मेंटेन करने के लिए। हम्म बट जो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट होता है वो ग्लोबल स्टेट के लिए, बेसिकली ग्लोबल स्टेट के लिए यूज होता है। हम्म। अगर आप एप्पल के प्री डिफाइंड इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज भी देखोगे तो वो सब ग्लोबल स्टेट वाली प्रॉपर्टी है ना। प्रीडिफाइंड तो देखो, प्रीडिफाइंड और अपना एनवायरमेंट कस्टम एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट दो अलग चीजें हैं, बट इनको थोड़ा मिक्स मत करो आप। तो जो प्री डिफाइंड है वो तो ऑब्वियसली बनाया है कि ओवरऑल ऐप में आपको एक्सेसिबल हो। पर ये जो चीज है, जैसे अभी मैं फर्स्ट स्क्रीन में जो इंटीग्रेट कर रहा है कोड में मैंने दिखाया आपको, ये फर्स्ट स्क्रीन से उसी हायरार्की में आपको एक्सेसिबल मिलेंगे ना। अगर मैं कोई और जर्नी वहां शुरू कर दूंगा अलग टैब में जाके, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे तो एक्सेसिबल नहीं होंगे, वहां पे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट मेमोरी में होगा ही नहीं अगर आप उस जर्नी में चले जाओगे, राइट। तो वो उसी जर्नी में एक्टिव होगा जिस जर्नी में आपने इनिशियलाइज किया, जिस जिस पैरेंट व्यू के लिए आपने इनिशियलाइज किए, उस पैरेंट व्यू के थ्रू अगर आप जाओगे और उसके अगली स्क्रीन पे जा रहे हो, तो उस चाइल्ड हायरार्की में आपको वो एक्टिव मिलेंगे, वो मेमोरी में रहेगा। और वही तब तक रहेगा जब तक वो सारा मेमोरी में, जैसे ही आप किल करते हो या जैसे ही आप वो जर्नी छोड़ देते हो और दूसरी जर्नी में जाओगे तो चीजें बदल जाएंगी, राइट। उस तरीके से। ठीक है। Cool. ठीक है, तो आई होप एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट को लेके वी आर प्रिटी क्लियर। और इस पे अगेन थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, और इस टॉपिक पे हम आएंगे जो कि है जो पॉइंट है री रेंडरिंग वाला, किस केसेस में इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम कर सकता है या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी आर क्लियर कि हाउ इट वर्क्स, हाउ इट बिहेव्स, राइट। तो ठीक है, मैं एक दूसरा सैंपल पे जाना चाहूंगा फिर, विच इज रिगार्डिंग दिस बाइंडिंग वाले पे। लेट मी ओपन द बाइंडिंग वन। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको, यस। तो पहले इसको क्विकली हम बिल्ड कर लेते हैं को, प्रीव्यू भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, तो एक बार आप
रन करते हैं जस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी का एग्जांपल है ये कोड बेस में। तो एक टॉगल लगा के रखा, राइट, वी आर यूजिंग वन टॉगल। इफ यू आर इनेबलिंग तो ये ऊपर देख रहे हैं आप कलर चेंज हो रहा है, अगर ऑफ कर रहे हैं तो कलर अलग। तो काइंड ऑफ फोरग्राउंड कलर वी आर चेंजिंग ऑफ द टेक्स्ट और लेबल यू कैन से। ठीक है, इतना ही हो रहा है। तो उसके लिए मतलब एप्पल ने क्या बोला, जैसा कि यूआई किट में यही चीज आप कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा तामझाम होगा उसके लिए। एप्पल ने आपको बाइंडिंग एट्रीब्यूट दिया है, तो स्टेट एट्रीब्यूट आई होप सबको क्लियर है, जो कि लोकली आपका स्टेट मेंटेन करता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, मैं एक बहुत छोटा सा पॉइंट टच करके अभी छोड़ रहा हूँ, उस पर हम आगे आएंगे, कि अगर मान लो मैं इसको स्टेट ना बनाता हूँ, इफ आई एम नॉट डिक्लेयरिंग दिस स्टेट, ठीक है, तो फिर आप इस कोड को पहले तो कंपाइल करो, ये आपको यही एरर दे देगा। ठीक है, और एक और चीज करो आप, इवन मुझे ये चाइल्ड व्यू नहीं चाहिए काइंड ऑफ, बट ओके ये मैनिपुलेट वहां पे हो रहा है, तो ठीक है, एक सेकेंड काम करो, आप चाइल्ड व्यू में आ जाओ और यहाँ पे आप, मैं कहूंगा बाइंडिंग ना दो। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे, वेट, टॉगल यूज कर रहा है ना ये, तो आई एम सेइंग लाइक दिस समथिंग। अब एक बार बिल्ड करो इसको, देखो ये क्या बोल रहा है आपको, बाइंडिंग बोल एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, बाइंडिंग वाली चीज तो हम नहीं चाह रहे हैं। इवन यू कैन कमेंट दिस कोड, और यहाँ पे वो बाइंडिंग एक्सपेक्ट करेगा आपसे। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा था, मतलब मेरा पॉइंट ये है, आपको मैं आपको इसके एक्चुअली स्टेट एट्रीब्यूट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कोई बटन नहीं है ना, एक बटन डाल देते हैं हम लोग, तो उससे मैं आपको बता पाऊंगा वो चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिकली इस ऑन वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज माई पॉइंट। और अभी आप देखना कि क्या होता है, और अगर मैं स्टेट एट्रीब्यूट हटा देता हूँ तो क्या एरर मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अभी चाइल्ड व्यू से मुझे लेना देना नहीं है वैसे, तो अभी ये व्हाट दे आर सीइंग, मैंने ट्रेलिंग क्लोजर नॉट एक्सपेक्टिंग, सॉरी इसको नाम देना चाहिए था। ठीक है, अब देखो ये एरर मुझे दिखाना था आपको, एक्चुअली ये एरर दिख रहा है, कैनॉट यूज म्यूटेटिंग मेंबर ऑन इम्यूटेबल वैल्यू, सेल्फ इज इम्यूटेबल। ठीक है, ये अगेन बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि अपना सारा जो भी कंटेंट और ये सारे स्ट्रक्ट है अपने, राइट, ये स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टी हुई, इवन प्राइवेट आप हटा दो लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट इज कि ये एरर आपको आएगा, ये बिल्ड ही नहीं करने देगा आप। ठीक है, ये एरर आएगा आपको, तो ये तो अपने को क्लियर है, हम लोग इतने सालों से यूआई किट भी कर रहे हैं और iOS में है, तो स्ट्रक्ट में अपने को पता है इम्यूटेबल होता है, ऐसे डायरेक्टली वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो एप्पल ने जब आप इसको ऐसे प्रॉपर्टी वापस दी हमको, जब हम ये यूज करते हैं तो वो अलग तरीके से उसको हैंडल करता है मेमोरी लेवल पे, ये वैल्यू आपको चेंज करने देता है, पर इंटरनली वो अलग तरीके से हैंडल कर रहा है। वो कैसे करते हैं उस पर हम बाद में आएंगे, बस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर आप एट्रीब्यूट ना देते हो तो फिर ये बेसिक नॉर्मल जैसा स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टीज बिहेव करती है वैसे ही बिहेव करेगा ये, राइट, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं लिख रहे हम लोग, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई। फिर नॉर्मल प्रॉपर्टी को आप ऐसे डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते वैल्यू को, राइट, वो म्यूटेटिंग इम्यूटेबल वाला सीन है। बट इफ यू रियली वांट टू चेंज, तो फिर आपको ये एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी वेपर ये सारे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एप्पल बोलते हैं कि अगर आपको सच में चेंज करना और आप चाहते हो कि इस वैल्यू के चेंज पे यू वांट टू अपडेट योर व्यूज, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है आप एक प्रॉपर्टी वेपर है हमारा स्टेट, उसको यूज कर लो और आपको बाकी हम देख लेंगे फिर कैसे करना है। इंटरनली दे आर मैनेजिंग दीज थिंग्स। ठीक है, तो जब भी फिर ये इज ऑन की वैल्यू चेंज होगी और जहां जहां पे इज ऑन यूज हो रहा है वो सारे कंपोनेंट्स रिकम्प्यूट होकर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से SwiftUI एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, तो मैं आपको बस वो एरर दिखाना चाह रहा था। अभी मैं वापस से इस कोड को मैं हटा देता हूँ, बस आपको मुझे वो दिखाना था कहीं पे। ठीक है, और तो हमने कुछ कमेंट नहीं किया, और चाइल्ड व्यू में आ जाओ एक बार, वहां पे भी ठीक है चीजें। ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे अगेन मैं प्राइवेट लगा सकता हूँ, जो मैंने हटाया था। प्राइवेट क्यों रिकमेंडेड है, क्योंकि हमको पता है स्टेट लोकल व्यू तक ही उसका स्कोप होता है। मतलब ये जो स्टेट वेरिएबल है अपना, ऑब्वियसली इट इज स्कोप ओनली विद दिस पार्ट, इट्स लाइक अ प्राइवेट वेरिएबल। इवन प्राइवेट नहीं कहोगे तो भी वो प्राइवेट स्कोप ही है उसका।
इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जब है इसको स्कोप इतना, उसके बाद उसको यूज भी नहीं कर सकते अपन एज सच, तो फिर क्यों अननेसेसरी उसको पब्लिक रखना या इंटरनल डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर रखना है उसका, राइट? डजंट मेक सेंस। अगेन मैंने बताया था कोई एक बेसिक रिकमेंडेशन है अपने iOS में या ओवरऑल भी प्रोग्रामिंग के इसमें, कि जितना स्कोप कम रखो, अगर जरूरत नहीं तो अननेसेसरी इसको स्कोप बढ़ाओ मत, ठीक है? पॉइंट ये होता है, एब्स्ट्रक्शन वाला लॉजिक है ये, बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग का। तो उसी कंटेक्स्ट से हम लोग इसको प्राइवेट रिकमेंडेड होता है कि डिक्लेयर करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अगेन वो रिकमेंडेड वाली चीज है ये, ठीक है? तो पॉइंट ये कि स्टेट वाला तो आप लोकली तो यहाँ पे कुछ भी खेल सकता हूँ मैं, पर मैं चाहता हूँ किसी चाइल्ड व्यू में इसको मैं भेज दूं, और वो चाइल्ड व्यू में ये वैल्यू दोनों की मैप हो जाए। और अगर मान लो मैं यहाँ बाइंडिंग एट्रीब्यूट यूज नहीं करता हूँ, इन केस आई एम नॉट यूजिंग बाइंडिंग, तो फिर क्या होगा, इसको मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं एक बार। इसको भी मैं अपना स्टेट कर सकता हूँ, इसका लोकल जो है, ठीक है? अगर हम लोग बाइंडिंग ना करें, और तो अभी देखना, नाउ सी हाउ दिस बिहेव्स, ठीक है? अगर बाइंडिंग ना करते हैं, दोनों अपने अपने स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर ये देखो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। Able to क्यों? get your voice, Kushal. यू आर नॉट गेटिंग माय वॉइस? बाकी लोगों को आवाज आ रही? हेलो? यस यस तो अंकिता, आपके यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, एक बार आप रीजॉइन कर सकते हो इफ यू हैविंग इशू मे बी विद नेट। Now I हाँ, can see. कूल कूल, ओके। सो द पॉइंट इज, अगर मैं बाइंडिंग ना करूं, इफ यू आर नॉट एक्चुअली यूजिंग बाइंडिंग, तो प्रॉब्लम आएगा, राइट? क्योंकि अभी इसके लिए स्टेट का वेरिएबल का वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, और जब आप ये टॉगल कर रहे हो तो अल्टीमेटली वैल्यू चेंज तो नहीं हो रहा है, और चाइल्ड का अपना स्टेट वेरिएबल है, ठीक है? उसके लिए उसका वो चल रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों में कोई लिंकिंग नहीं है, राइट? क्योंकि कोड का कलर तो अपना यहाँ चेंज हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू अलग चल रही है, दोनों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो दोनों अपना अपना लोकली वैल्यू दोनों की हो सकता है फॉल्स ही चल रही है, इसलिए कलर वो डार्क ग्रे ही पड़ा है और ब्लू हो नहीं रहा कलर, राइट? और वो चेंज भी नहीं हो रही वैल्यू, दोनों की अपनी स्टैटिक वैल्यू हो गई काइंड ऑफ। इस बात को समझ पा रहे हो? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बीच में। अरे ये क्या गूगल मीट इफेक्ट है, ठीक है? सो यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से बाइंडिंग एप्पल ने बोला कि ओके, अगर आपको पेरेंट चाइल्ड व्यू के बीच में कुछ रिलेशन बनाना है, और उसमें आप चाहते हो कि एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, दूसरे को पास कर रहा है, और फिर उसको यूज करना है, ऐसा कुछ सीन है, तो भाई फिर बाइंडिंग यूज करो, बाइंड कर दो दोनों चीज को, फिर वो एक इधर चेंज हुई तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ चेंज हुई तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो अब सिंपली स्टेट को अगर मैं बाइंडिंग कर दूं तो काम हो जाएगा अपना। वापस से उसी कोड पे आ जाते हैं जहां पे हमने शुरू किया था। तो नाउ यू कैन सी, अब मैं अपन बिल्ड करते हैं तो बाइंड हो जाएंगी चीजें, बस बाइंड करने का ही खेल था ये। और एक मिनट, यहाँ पे भी हमको बाइंडिंग ये डॉलर यूज करना है बस, ठीक है? तो बाइंडिंग के लिए वो डॉलर वाला यहाँ पे एक सिंटेक्स होता है। अब देखो वापस रिफ्लेक्ट हो रही चीजें, राइट? तो यही बात है बस, ठीक है? तो बाइंडिंग के लिए अगेन आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो अगेन इंटरव्यू में कोई पूछे घुमा फिरा के भी तो कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट क्या वर्क कर रहा है, बाइंडिंग क्या करता है, उसका क्या रोल है। और एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट भी अपन ने देखा, अब उस पर आएंगे ऑब्जर्व और स्टेट ऑब्जेक्ट पे, बट यहाँ तक क्लियर है, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें सच कुछ कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज भी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। स्टेट, बाइंडिंग एंड एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है? कोई दिक्कत? एनीवन? क्लियर है दिस थिंग? ठीक है, कूल। और ये कोड बेस भी सैंपल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये मैंने एक्चुअली खुद इंटरनेट से ही लिया है, एक रेपो है उनके थ्रू ही, क्योंकि इनके एग्जांपल्स मुझे अच्छे लगे तो मैं अपने क्रिएट करने जा रहा था, तो मैं इनके ही डायरेक्टली यूज कर लेते हैं तो टाइम सेव हो जाएगा। बट हाँ, इट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन, सैंपल कोड्स, ठीक है? तो पॉइंट इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बाय क्लियर है, तो अब आप खुद से भी जाके कुछ भी ट्राई करोगे, आपको चीजें क्लियर होंगी। अब उसके साथ खेलो फिर थोड़ा, और जितना खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको एक्चुअली ये चीजें इजी लगेंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। हाँ लेना, तो आई कैन शेयर, आई विल शेयर आफ्टर दिस सेशन, ओके? यू विल गेट ऑल दीज कोड्स, कूल। तो अभी हम लोग चलते हैं उस पे स्टेट ऑब्जेक्ट वाला देख लेते हैं एक बार। और फिर मैं लिस्ट वाले उस पे आइडेंटिफाइबल पे भी आऊंगा। लेट मी गो थ्रू ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट वाला चीज, यस दिस वन, ठीक है? तो मैं एक मिनट दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, पीपल एक्चुअली कंफ्यूज विद दीज थिंग्स ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट वाली चीज के साथ। तो इसको भी मैं एक बार बिल्ड कर लेते हैं, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है और फिर यहाँ पे कैसी चीजें वर्क कर रही है एंड हाउ दे आर यूजिंग ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो विल सी दिस। ठीक है, तो अभी इसको मैं एक बार रन ही कर लेता हूँ आपको। यूजर नेम में मैं इवन यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज कुशल, तो ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, कूल। और यहाँ पे एक ही स्क्रीन है, देखिए यहाँ 3 स्क्रीन वाला सीन नहीं है, वो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट में जानबूझ के 3 स्क्रीन का सीन रखा था, क्योंकि टू शो यू कि फर्स्ट स्क्रीन पे पेरेंट पे इंटीग्रेट किया तो थर्ड स्क्रीन पे यूज कर सकते हो आप, या उस हायरार्की में कहीं भी यूज कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे वो सीन नहीं, यहाँ पे अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट का क्या कंटेक्स्ट है। तो अभी देखेंगे हम कैसी चीजें वर्क कर रही है यहाँ पे। तो अभी देखो ये अपना है यूजर, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, यूजर अगेन एज एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट डिफाइंड किया है। तो जैसे हमने, आपको याद होगा हमने ये डिस्कस किया था, ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट है तो ये कंफर्म कर रहा होगा इस प्रोटोकॉल को, राइट, दैट वी नो, राइट। ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट एक प्रोटोकॉल होता है और ये प्रोटोकॉल एक्चुअली एक क्लास ही कंफर्म कर सकते हैं, को दिख रहा है ये स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको स्ट्रक्ट बनाता हूँ तो मुझे कंपाइल एरर आना चाहिए, देखो आया कंपाइल एरर। अब आप बोल रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है कुशल, स्ट्रक्ट भी तो कंफर्म कर सकते हैं, प्रोटोकॉल कर सकते हैं, और ये प्रोटोकॉल किस टाइप का, पहले ये देख लो एक बार। तो ये प्रोटोकॉल के अंदर जाओ तो यू कैन सी कि ये देखो ये एनी ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोकॉल है। आई होप आपको एनी ऑब्जेक्ट और एनी का डिफरेंस थोड़ा पता होगा, नहीं होगा तो हम आगे इस टॉपिक को लेंगे, बट इतना अभी के लिए समझो, एनी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो प्रोटोकॉल को कोई क्लास ही कंफर्म कर सकता है, कोई रेफरेंस टाइप ही कर सकता है, वैल्यू टाइप स्ट्रक्ट नहीं चलेगा वहां पे, इतना समझो अभी के लिए। ठीक है, आई होप गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसलिए ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट, द पॉइंट इज कि ये रेफरेंस टाइप वाला प्रोटोकॉल है, तो उसको स्ट्रक्ट चाह के भी नहीं कर सकता, आप चाहोगे तो भी वो कंपाइल एरर दे देगा आपको, तो इसके लिए आपको क्लास ही रखना पड़ेगा। तो जो भी अपन ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हैं और वो जो मॉडल्स या प्रॉपर्टी पे हम बनाते हैं, वो आपको क्लास ही डिफाइन करने पड़ेंगे, स्ट्रक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट, और उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। अगेन बहुत बेसिक चीज है, पर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं और उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों क्लास ही कर सकता है, क्योंकि ये एनी ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल है, ये क्लास प्रोटोकॉल है काइंड ऑफ। ठीक है, तो स्ट्रक्ट चाह के भी नहीं कर सकता। अब क्यों एप्पल ने इसको क्लास बनाया है, इसके पीछे भी कुछ रीजन होंगे, उसमें हम आगे आएंगे, पर इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों क्लास ही कर रहा है और क्यों स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दैट इज शुड बी क्लियर विथ यू। तो हाँ, वापस आते हैं हम कंटेंट व्यू पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं एक लेबल है, उस लेबल को यूजर नेम से मैप किया हुआ है, जो कि आपको ऊपर दिख रही है ये वाली लेबल, राइट। और एक टेक्स्ट फील्ड है, उसमें जो भी वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ उसको मैंने मैप किया हुआ है नेम के एट्रीब्यूट के साथ। ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है इसमें अपना एक नेम है, एक लास्ट नेम भी है। लास्ट नेम को आई डोंट थिंक कि हम यूज कर रहे हैं, सच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बना के रख दिया है, बट द पॉइंट इज हम नेम प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं अभी, राइट। तो इतना ही हो रहा है यहाँ पे। तो आप बोलोगे ठीक है ये तो सब ठीक है, बट द पॉइंट इज, अब मान लो अगर इसको आपको सेकंड व्यू में डालना है, तो एक तो आप वो कर सकते हो। अभी ये जो चीज हो रही है, अच्छा इसमें एक और चीज हो रही है, सॉरी सेकंड व्यू पे नहीं आऊंगा मैं। आप बोलोगे ये तो स्टेट से ही कर देते हैं, मतलब क्यों ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, लेट्स ट्राई विद स्टेट। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, स्टेट्स के साथ क्या बिहेवियर मिल रहा है हम देखते हैं, और क्यों ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट की फिर जरूरत पड़ रही है। तो स्टेट किया तो अब देखना क्या होता है। अब मैं कुछ नाम डालता हूँ, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, नथिंग। कोई है जो इस पर आंसर करना चाहेगा कि वाई स्टेट के साथ ये काम नहीं कर रहा है और क्यों उसको ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट ही लग रहा है फिर? एनीवन, कोई आंसर करना चाहेगा? Why this is not working with state and why this is working with observed object? Anyone? इसका डिफरेंस या इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं? कूल, ठीक है। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा, जी क्योंकि जी बोल। ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट की केस में है ना, उधर पब्लिशर है, वो पब्लिश करता है जब भी कुछ भी वैल्यू चेंज होती है यूजर की। ओके, और स्टेट के केस में क्या है कि स्टेट के केस में वो पब्लिश नहीं करेगा। स्टेट तो एज 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 इट सेज ये लोकली मैनेज होता है व्यू के अंदर, तो मैनेज वो होता कुछ है, एमिट नहीं कर रहा, तो इसलिए उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी दूसरी जगह। वो वैल्यू समझ रहा चेंज तो है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हूँ। होगी। मैं तो स्टेट भी बना रहा हूँ, तो आपकी बात में समझ रहा हूँ, यू आर राइट एक्चुअली। पर मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि भाई स्टेट बनाया और यूजर का अल्टीमेटली तो नेम की वैल्यू तो चेंज हो रही है टेक्स्ट फील्ड में, राइट। तो समवॉट करना चाहिए था, फिर भी क्यों नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, व्हाई दिस नॉट वर्किंग।
स्टेट है, ठीक है, लोकल है, लोकल में यूजर इनिशियलाइज किया हुआ है, पर इसका वैल्यू टेक्स्ट फील्ड से मैप किया हुआ है, तो समवॉट इसका नेम का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो नेम का वैल्यू चेंज हो रहा है मतलब यूजर का वैल्यू चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो जब यूजर चेंज हो रहा है तो क्यों ये स्टेट के साथ वर्क नहीं कर रहा है? फिर करना तो चाहिए था, क्या लगता है? अगर हम इसे स्ट्रक्ट बना दें यूजर को, आई थिंक उस केस में कर जाएगा वो, अगर हम उसे ऑब्जर्वेबल struct- ऑब्जेक्ट बना दें। हाँ हाँ, अगर हम यूजर को लेट्स से वी Okay. मेक इट, लेट्स गो बना ले- टू द, लेट्स मेक बना इट स्ट्रक्ट एंड डोंट, या लेट्स क्रिएट एन एक मैं separate, इसको copy for कर लेता हूँ। example हाँ, we create a separate struct and comment it out. Yes, एक सेकंड, yes, yes, वही कर रहा हूँ मैं। इसको मैं यूजर स्ट्रक्ट ही नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे पब्लिश सब नहीं रहेगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यूज करता हूँ, जो आप कह रहे हो देख लेते yeah, हैं। let's try this. Yes, लेट्स ट्राई दिस। इसकी जगह यूजर स्ट्रक्ट आ जाएगा, ये भी यूजर स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। and तो then I as think such- text में name I think at the इस डॉलर के साथ नहीं आएगा टेक्स्ट। डॉलर हटा देते हैं, डॉलर हटा देते हैं, ठीक है। और कहाँ दिक्कत दे रहा है ये? कैन नॉट कन्वर्ट बाइंडिंग, डॉलर रखना पड़ेगा, डॉलर रखना पड़ेगा। Okay. डॉलर रख देते हैं। अब क्या एरर दे रहा है देखो एक बार, No बिल्ड error. फेल यहाँ पे, ओके सॉरी मैं ये छोड़ दिया था। अब ठीक है, बिल्ड करो एक बार, बिल्ड हो रहा है क्या? बिल्ड हो गया, तो अभी इसको रन करते हैं, लेट्स सी अब क्या बिहेव मिलता है अपने को, बिहेवियर। अब मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ, वर्क कर गया। तो बाकी लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों, मतलब राइट, आपका पॉइंट सही था। स्ट्रक्ट टाइप बनाया तो ये डायरेक्टली फिर, क्योंकि स्ट्रक्ट में अगर आप काइंड ऑफ जैसे स्टेट डिफाइन किया हुआ है, स्ट्रक्ट का अगर मैं ऑब्वियसली किसी का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो समवॉट यूजर मेरा चेंज ही हो रहा है, चेंज हो रहा है तो बाइंडिंग हो गई प्रॉपर, देखो वर्क कर रहा है बिंदास। और अभी हम यूजर स्ट्रक्ट ही यूज कर रहे हैं, राइट। मैं यूजर स्ट्रक्ट यूज कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्ट टाइप का है, यहाँ पे कोई पब्लिश नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो माय क्रॉस क्वेश्चन इसकी फिर किस केस में ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए था? जब स्टेट्स ही काम हो गया तो फिर उसकी जरूरत क्या है? दैट इज माय क्वेश्चन नाउ। कोई आंसर करना चाहेगा इस पे? वो किस कंटेक्स्ट में जरूरत है, फिर जब स्टेट ही काम हो जाएगा तो फिर उसकी क्या जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक? एनीवन? Actually, throughout, hi, this is Nitesh here. Throughout the application, we cannot, use state because observable कैसे काम करता है कि आपका एक रेडियो स्टेशन है, राइट, जहाँ से आपके सिग्नल्स जा रहे हैं, और बाकी जहाँ पे आपका रेडियो है एक्चुअली, राइट। एक मेरे पास रेडियो, एक आप लोगों के पास रेडियो, तो जहाँ से सिग्नल्स भेजे तो सब जगह वो जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो गया, वो सब मॉडल पे करता है। लेकिन अभी कैसा है, अगर आप स्टेट यूज करेंगे तो होगा क्या, सब जगह आपको उसको पास करना पड़ेगा, या तो वैसे यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसा है, वो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इसके लिए एक टर्म यूज होता है प्रॉप ड्रिलिंग, राइट। प्रॉप ड्रिलिंग, हाँ, तो ऐसा एक वर्ड होता है प्रॉप ड्रिलिंग। तो कैसा है कि आप हर हायरार्की में क्या कर सकते हैं कि आप हर हायरार्की में वो ऑब्जेक्ट्स या जो वैल्यूज है वो पास नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पब सब मॉडल और ऑब्जर्वेबल यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये इफेक्टिवली यूज हो। तो ये इसका ये है। आई डोंट नो, काफी हद तक यस यू आर राइट। यस यस यस, अर्जुन ने भी डाला है, इफ यूजर चेंज फ्रॉम एक्सटर्नल प्लेस देन वी हैव टू यूज इट। यस, ये भी बात सही है। और सुभाजीत, आप कुछ कहना चाहोगे अपने हैंड? हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा था जो उन्होंने अर्जुन ने बोला है कि यहाँ पर क्या है कि हम स्टेट भी मतलब व्यू ही चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई लोकली चेंज हो रहा है इसलिए चल जा रहा है, यही कहना चाह रहा इसलिए हूँ। चल जा रहा है, राइट। फाइंड करके किसी फाइल व्यू यूज करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वर्क नहीं Yes, करेगा। if we get data from some API or some other resource, then Yeah. things are not reflected here, and then we have to go with observe object. कूल, ठीक है, मेक सेंस। आई होप बाकी लोग भी इस बात को समझ पा रहे होंगे, और मैं चाहूंगा आप लोग इस पे हैंड्स ऑन करना, थोड़ा सा ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट के साथ खेलना पड़ेगा, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो जो कंफ्यूजन डाउट है ना, एक अनकंफर्ट जोन है इस चीज को लेके, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑब्जेक्ट का हमने एग्जांपल देखा था, याद होगा। अच्छा, मैं अभी स्टेट ऑब्जेक्ट पे तो आया ही नहीं हूँ, पर अभी हम ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट पे ही बात कर रहे थे। बट स्टेट ऑब्जेक्ट में वो स्टेट ओन करता है, लाइव रहता है, रिटेन करता है स्टेट, राइट, वो हमने देखा था।
और ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्व करेगा बट स्टेट लाइव मेंटेन नहीं करेगा, खुद की स्टेट को वो नहीं करेगा। वो एक डिफरेंस था हमने, इफ यू रिमेम्बर राइट, वो हमने देखा था, रैंडम नंबर और काउंटर वाला एग्जांपल था। बट हाँ, आज जो अभी हमने देखा अभी ये केस में, दैट इज राइट कि अगर आप स्टेट से लोकली अपडेट कर रहे हो तो फाइन है। बट अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड व्यू इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं चाहूंगा अभी के लिए हम रैप अप करेंगे, बट मैं चाहूंगा यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आप इसके साथ खेलना, आपको दिख जाएगा। अगर सेकंड व्यू बना के अगर हम उसके साथ भेजेंगे तो वहां पे वो स्टेट वर्क नहीं करेगा, फिर आपको इस अप्रोच पे जाना पड़ेगा। सेकंड थिंग, ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट अगेन मल्टीपल व्यूज में या एक कॉमन सोर्स ऑफ ट्रूथ में भी वर्क करता है राइट, क्योंकि वो पब्लिश करता है, एमिट करता है वैल्यू, जिससे आई थिंक किसने बोला था वो चीज, वो की सही बात है नितेश ने, आई थिंक रेडियो एमिट्स वाला सिग्नल वाला चीज है, क्योंकि पब्लिश कर रहा है, जहां भी वैल्यू चेंज होगी पब्लिश होगा, और जो जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या लिसन कर रहे हैं, काइंड ऑफ इट्स लाइक अ लिसनिंग योर नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर राइट। ये आरएक्स शिफ्ट में भी जो हम पब्लिश सब्सक्राइबर करते थे वैसे ही कंबाइन में करते हैं, करेक्ट वो चीज है काइंड ऑफ राइट। और इवन इंटरनली आप देखोगे वो पब्लिश एट्रीब्यूट वही है, कंबाइन वाला यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इन तरह के सिनेरियोज में यही फिर बेस्ट अप्रोच है, वो आप स्टेट के थ्रू कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो आई होप आई थिंक आज के लिए हम लोग यहाँ रुक सकते हैं, एंड इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। मोस्टली वी आर प्लानिंग नेक्स्ट सेशन ऑन ट्यूसडे इवनिंग, ठीक है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग अगले सेशन में भी आओ, एंड रियली थैंक यू सो मच कि आप लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हो और या पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, विच इज एक्चुअली मतलब सही रहता है इफ यू रियली एक्टिवली लिसनिंग एंड कंट्रीब्यूट, ठीक है। तो द पॉइंट इज, मैं एक चीज बता दूं, हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी लोग एक्टिव है मैं एक पोल शेयर कर दूंगा, उस अकॉर्डिंगली हम ग्रुप्स क्रिएट करेंगे दोनों प्रोजेक्ट्स के, एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जिसमें बैकएंड टीम भी हम लोग रेडी कर रहे हैं जो एपीआईज बनाएंगी ओवर द मेन टाइम। बट तब तक हम अपने फ्रंट एंड पे काम स्टार्ट कर देंगे। वी हैव रेफरेंसेस, वी विल स्टार्ट ऑन इट, इवेंचुअली विल गेट द एपीआईज एंड योर यूआई-यूएक्स डिजाइंस, ठीक है, फिग्मा फाइल्स, ठीक है। तो इसके लिए आप लिंक्डइन अपना गिटहब और बेटर कर सकते हैं हम लोग, तो व्हाई नॉट, क्यों ना करें हम। और आज से ही आप लोग अपनी प्रोफाइल्स पे काम शुरू करो। लिटरली इंटरव्यू कॉल्स चाहिए तो थोड़ा स्टैंड आउट करना पड़ेगा, इस बात को समझो। तो जितना कर सकते हो उतना करो, खाली मत बैठो, फ्री टाइम में ये चीजें करो आप, उतना ही आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगी, उतनी कॉल्स आने के चांस बढ़ेंगे। अगर जितना आप करोगे, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप भी खुद के लिए करें ये चीजें। ये आपको हेल्प करेंगी काफी, करियर वाइज या जॉब के लिए या ओवरऑल फ्रीलांसिंग बिजनेस सभी कंटेक्स्ट से भी हेल्प करता है, पर मैं अभी सिर्फ जॉब के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। आई होप हम सब कर सकते हो, इससे एग्री करते हो आप लोग, ठीक है। तो चलेगा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में ट्यूसडे लेट इवनिंग, मोस्ट प्रोबेबली आई विल कंफर्म द टाइम। ऑल्सो आई विल शेयर द पीआरडी डॉक्स टुडे, गो थ्रू इट, एंड ऑल्सो आई विल शेयर दीज सैंपल कोड्स, ठीक है। तो पॉइंट ये मेरा, इंटरव्यू क्वेश्चंस के पहले मैं चाहूंगा कि जानबूझ के वी आर एक्चुअली रिविजिटिंग द टॉपिक्स अगेन, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप आज आपकी और क्लियर हुई होगी, जो कि पिछले सेशन में शायद ना हुई हो, और या जिन्होंने मिस की हो सेशन। तो ठीक है, जितनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी उतना फिर आपका वो डाउट, कंसर्न, फियर निकल जाता है अंदर से, वही मेन इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका वो निकल गया ना, फिर आप किसी भी इंटरव्यू में जाने के पहले ना डरोगे नहीं, सोचोगे नहीं, बिंदास जाओगे और बोलोगे चलो पूछ लो जो पूछना है, दे दो जो बनाने को देना, बना लेंगे भाई। ये कॉन्फिडेंस चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। पॉइंट ये है, या जो भी टॉपिक जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। पॉइंट ये है। और एक जो भी चैलेंजिंग टॉपिक्स है उसका भी मैं एक भेजूंगा लिंक, प्लीज मेक श्योर आप उस पर अपना जो आपको टॉपिक स्ट्रगलिंग चैलेंजिंग लगते हैं वो आप वहां पे मेंशन करें, ठीक है। उस अकॉर्डिंगली हम आगे के सेशंस भी प्लान करेंगे। सो कूल, ओके देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।